الحمد لله وحده وعلى آله وصحبه ومن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل وقال تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، آج کی اس متبرک مجلس میں اور آج کی اس محفل میں میں کچھ آپ لوگوں کے سامنے لفظ شائع کروں گا، کچھ نصیحت کروں گا اولاد کے تربیت کے سلسلے میں. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے قبل کہ ہمیں وہ خود عمل کرنے کی توفیق دے. میرے محترم بزرگوں، میں نے جس آیت کو سلیکٹ کیا ہے، جس آیت کو انتخاب کیا ہے، وہ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن پتھر ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ایکسپلین کیا ہے، اس کی وضاحت کی ہے کہ آپ اپنے اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو اچھی تعلیم دو اور اس کی تربیت کرو. فقہا نے اس سے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ اولاد کو احکام شرعیہ اور دین کے جتنے بھی احکامات ہیں انہیں سکھایا جائے، انہیں بتایا جائے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کہ receiving education is must on every Muslim men and women، کہ ہر ایک مسلمان پر مرد ہو یا عورت اس کو اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جتنا کہ وہ حلال اور حرام کو جان سکے، اتنا تو ضروری ہے. اولاد کی تربیت اگر بچپن سے ہی کیا جائے، اسے دینی و اصلاحی و معاشرتی اخلاقی ڈسپلین اگر ان کو سکھایا جائے تو وہ اولاد اپنے والدین کے حق میں، اپنے پیرنٹس کے حق میں وہ دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے نیک ذریعہ بنتی ہے. اور اسی کے اپوزٹ میں، اسی کے برعکس اگر اولاد کی تربیت، اولاد کو ڈسپلین بچپن میں نہ کیا جائے، بلوغت کے بعد اگر آپ اس سے اچھے ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں، اچھے امید رکھتے ہیں، یہ دھو دیجئے گا اپنے نگاہ سے، یہ بھول جائیے گا اپنے دل و دماغ سے، اسے نکال دیجئے گا. چونکہ جو بچپنا ہوتا ہے، جو چائلڈ ہوڈ کا زمانہ ہوتا ہے، وہ ایک بلینک پیج کی طرح ہوتا ہے، خالی کاغذ کی طرح ہوتا ہے. آپ اسے جس طرح چاہے، جیسا چاہے اس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں. آپ نے مٹی کو دیکھے ہوں گے، جب مٹی نرم ہوتی ہے تو آپ اسے کچھ بھی بنا سکتے ہیں. اسی طرح یہ بچے ہیں، اگر آپ اس بچے کو بچپن کے اندر اگر صحیح تربیت کی ہے، صحیح اخلاق آپ نے سکھایا، صحیح عادات و اقوال ان کو سکھائے، تو یہ آپ کے حق میں روز محشر کے دن ایک نیک ذریعہ بنے گا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
डॉक्टर दिया जाए। वहां पे ऐसा नहीं कहा है कि इसे बिजनेसमैन बनाया जाए, ऐसा नहीं कहा है कि इसको पुलिस बनाया जाए, ऐसा नहीं कहा है कि उसे डॉक्टर बनाया जाए, ऐसा नहीं कहा है कि उसे आलिम दीन बनाया जाए, ऐसा नहीं कहा है कि उसे हाफिज कुरान बनाया जाए, लेकिन इतना जरूर कहा है कि उसे तालीम और अच्छे आदाब सिखाया जाए। क्योंकि रोज़े महशर के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला आपसे आपके अमाल के बारे में तो पूछेंगे ही, लेकिन आपसे ये भी जरूर पूछेंगे कि आपने अपने औलाद को किस तरह डिसिप्लिन किया, कि आपने अपने औलाद को किस तरह तरबियत की, ये तो जरूर पूछेंगे। हमने आपको बातें थोड़ी दिया था, हमने आपको एक अच्छा माइंड, एक अच्छा अक्ल दिया था ताकि आप उसके जरिए से हक और बातिल के दरमियान डिफरेंशिएट कर सकें। तो आज खूब गौर करें कि आज हम अपने औलाद को किस तरह तरबियत करते हैं। आज के पीरियड के अंदर अगर गौर करेंगे तो जो बच्चा है आपके घर में, न उनके सही से लिबास होते हैं, न उनके सही से अखलाक होते हैं, न उनसे न उसको कंट्रीब्यूट करने का कोई तरीका पता होता है, अपने बड़ों से किस तरह तकल्लुम किया जाए, किस तरह बात किया जाए, उनको ये नहीं पता होता है। उनके ड्रेसेस, उनको ये नहीं पता होता है कि ये दीन का ड्रेस है या दुनियावी ड्रेस है, उनको यही नहीं पता होता है। याद रखिए, कल क़यामत के दिन आपसे इसके बारे में जरूर पूछा जाएगा और ये रिस्पांसिबिलिटी है आपकी, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका फर्ज है कि आप अपने औलाद को, अपने अहल औलाद को इस तरह के डिसिप्लिन दे, इस तरह से उनकी तरबियत करें ताकि वो दीन में भी चले और दुनिया में भी चले। लेकिन आज जो फोकस कर रहे हैं लोग, जिनकी निगाहें दुनिया की तरफ जा रही हैं, वो अपने दीन को भूल ही चुके हैं। हालांकि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला दुनिया के बारे में नहीं पूछा जाएगा, आपसे दीन के बारे में जरूर पूछेगा। तो जिसके बारे में पूछ होगी उसी चीज को हमने खोज कर दिया है, उसी चीज को हमने छोड़ दिया है, उसी चीज को हमने तर्क कर दिया है और हम फोकस दुनियावी पर कर रहे हैं। हालांकि ये दुनिया चंद रोज़ है, वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया चंद दिन के लिए और ये खेलने के प्लेसेस है, ये खेलने कूदने की जगह है, ये एक एग्जाम हॉल की तरह है। जिस तरह एक एग्जामिनर 3 घंटे तक रहता है, उसी तरह हमारे लिए भी इस दुनिया के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक टाइम फिक्स कर दिया है, एक वैलिडिटी मुतय्यन कर दिया है कि आपको 60 से 70 साल तक जीना है। 60 से 70 साल जीने के लिए आप अपनी दीन को खो दे रहे हैं, अपने औलाद की सही तरबियत नहीं कर पा रहे हैं। आज अगर बच्चा नमाज नहीं पढ़ रहा है, हम आज कुछ दिक्कत नहीं। अगर आज का बच्चा स्कूल से अगर किसी तरह लेट गया, किसी तरह नहीं गया, मदरसा नहीं गया या फिर कहीं और जगह चला गया, उसे पूछने वाला कोई नहीं। वो इस तरह का महसूस कर रहा है बच्चा कि बकरी के बच्चे की तरह, उसे कोई डिसिप्लिन नहीं, उसे कोई तरबियत नहीं किया जा रहा। अगर यही सिचुएशन रहा तो और 5 साल के बाद, आपके वफात होने के बाद, आपके मर जाने के बाद कोई कुरान करने वाला तक नहीं होगा, कोई इशारे सवाब करने वाला नहीं होगा, कोई निकाह पढ़ाने वाला नहीं होगा, कोई जनाजा पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए कोशिश करें कि आप अपने औलाद को दोनों तालीम, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ आप दीनी तालीम नहीं, आज के पीरियड में जिस दौर से हम और आप गुजर रहे हैं, इसमें दोनों चीज को हासिल करना जरूरी हो गया है। अगर एक चीज को हासिल करेंगे तो दुनिया में नहीं जी पाएंगे। अब हमें जीना भी है और लड़ना भी है, तो दोनों रास्ता हमें इख्तियार करने पड़ेंगे। अगर एक दोनों में से किसी एक को इख्तियार करेंगे तो आपके लिए खतरा है। तो सबसे पहले आप दीन की तालीम दें, फिर दुनियावी तालीम कीजिए।
बहुत बड़ा बोझ हो जाएगा। कल क़यामत के दिन यही बच्चा आपके हक में अदालत के लिए मुकदमा दायर करेगा, कहेगा रब्बना इन्ना अताअना सादतना व कुबराना फज़ल्लूना सबीला। ये आयत करीमा वो बच्चा बर्दाश्त करेगा, कहेगा ए हमारे परवरदिगार, ए हमारे रब, हमने इनको माना था, हमने इनको अपना बड़ा माना था, हमने इनकी फॉलो की थी, हमने इसका सारी बातें मानी, लेकिन इन्ना अताअना सादतना व कुबराना, लेकिन इन्होंने हमें राह से भटका दिया। मेरी माँ ये कहती थी कि बेटा तुम डॉक्टर बन जा, मैं डॉक्टर बन के दिखाया। मेरे वालिद साहब कहते थे बेटा इंजीनियर बन जा, तो मैंने इनको इंजीनियर बन के दिखाया। मेरे वालिदा कहते थे कि बेटा तुम पुलिस बन जा, मैंने पुलिस बन के दिखाया। मेरे बाप कहता था कि आप पायलट बन जाओ, मैंने सब कुछ करके दिखाया, लेकिन उन्होंने कभी मुझे दीन के बारे में ये नॉलेज नहीं दिया, ये इल्म नहीं दिया। जब कभी मैं रोजा रखता तो मेरे वालिदा कहते बेटा कमजोर हो जाएगा, रोजा मत रखो। यही सिचुएशन है आज के पीरियड में। आज अपने औलाद को इस तरह की तरबियत दे रहे हैं कि कल क़यामत के दिन ये बच्चा क्या कहेगा आपको मालूम है? रब्बना आतीहिम दुर्फैहिम मिनल आज़ाब वलअनहुम लअनन कबीरा। ये जो आपने उस पर जो मोहब्बत है, जो आपने दुनिया के अंदर गिराया, जिनके लिए दिन और रात लेकर दिए, खून पसीना उनके लिए लेकर दिया, वही बच्चा कल क़यामत के दिन अदालत में कोर्ट में मुकदमा दायर करेगा, कहेगा ए हमारे परवरदिगार इस पर आधार गुनाह कर दे। एक तो ऑलरेडी पहले से ही था आपका, लेकिन वो डबल करने का मुतालबा करेगा, डबल देने का डिमांड करेगा कि उसे गुनाह अदा हो दे। रब्बना आतीहिम दुर्फैहिम मिनल आज़ाब वलअनहुम लअनन कबीरा, और इस पर जिल्लत व रुसवाई इस पर दायर कर दी। ये दुनिया बहुत आसान है, इसके जीने के तरीके अलग अलग हैं। इन्हें सिखाना पड़ेगा, बच्चे को अपने अच्छी तरबियत देनी पड़ेगी। अगर आपने न दिया तो कल क़यामत के दिन ये आयत करीमा को आप सामने रखें, सारी बात आपको वजाहत से मिल जाएगी। वरना ये भी हो सकता था कि मेरा बच्चा मेरे हाथ में सिफारिश करे, ये भी हो सकता था, ये भी पॉसिबल था, लेकिन अगर आपने उसकी सही तरबियत न की तो कल क़यामत के दिन ये जरूर कहेगा कि हमारे परवरदिगार की राह से जो भटकाया था, बड़ा माना था, हमने कोई दीन के रास्ते में चलने का इल्म कभी जोड़ा ही नहीं, हमें दिखाया तक नहीं। मौलाना साहब एक हदीस पढ़ते हैं कि मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिन्हुम, कि जो कोई शख्स अपने कौम के लिबास को इख्तियार करे, जो कोई शख्स दूसरे कौम की मुशाबहत इख्तियार करे, वो हम में से नहीं है। आजकल के बच्चे को ये नहीं पता होता है कि हम मदरसा जा रहे हैं तो हम किस लिबास पर पहन करके जाए, तो ये नहीं पता होता। आपको ये मालूम है कि हम स्कूल अपने बच्चों को भेज रहे हैं, उनके लिए ड्रेसेस जरूरी है, विदाउट ड्रेस के स्कूल के अंदर एंट्री करने नहीं देता है। लेकिन आपको ये कैसे नहीं पता होता है कि मदरसे के जो तालिब इल्म जो हम मदरसे भेज रहे हैं, हम उनको उनके लिए एक स्पेशल ड्रेस दिलाएं। मौलाना अबरार हक साहब लिखते हैं कि अपने बच्चों को कुछ ना कर सको तो कम अज कम उसे दीनी लिबास पहनाओ, कम अज कम उसके अंदर ये तो फील हो सकता है, कम से कम वो ये ऐसा सोच सकता है कि आई एम ऑल्सो मुस्लिम, कि मैं भी एक मुसलमान हूँ। ये कम से कम रियायत होगा उसके अंदर, ये कम से कम एहसास होंगे। आज के मुसलमान, मैं मानता हूँ कि आप जो ड्रेस पहने वो सही है, लेकिन ये नहीं कि हम नहीं कह रहे हैं कि आप वो सब ड्रेस से छोड़ दें, लेकिन ये भी जरूरी है कि आप दीनी लिबास पहनिए। हम आइडियल हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जो आइडियल है, एक नमूना है। उनके लिबास, उनके अखलाक, उनके अक़वाल, उनके चलन, उनका ढंग किस तरह हमें नहीं पता। आज किसी बच्चे को उठा करके गांव में से किसी भी बच्चे को
को आप उठा करके पूछ लीजिए कि आप तीसरा कलमा सुना दीजिए, मैं मान लूंगा कि बच्चे सुना देगा। पॉसिबल ही नहीं है, उन्हें दीन ही नहीं सिखाया गया। जब ये दीन अगर इस तरह से हमसे अगर गायब हो जाएगा, हम लोग इसे पत्ते पुष्प डाल देंगे, इसे मजा मेज करके खत्म कर देंगे, तो फिर वो सारे सवाल कौन करेगा? जब तक कि उसको कलमा ही नहीं पता है तो कुरान हदीस कहां से उसे पता हो? ये भी तो एक दीन का एक हिस्सा है, ये भी एक दीन का एक जुज है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब किया, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्बिर अलैहा, कि आप अपने इबादत को नमाज के लिए खत्म करें। वहां पे जब आप बोल करेंगे तो एक बात समझ में आएगी कि वअमुर अहलका यानी अपने अहल व अयाल को, बात नहीं दूसरे लोग। तो आपकी जो जिम्मेदारी है, आपकी जो ड्यूटी है, वो सबसे पहले अपने घर वालों पर आई होती है। वो फर्ज है आप पर, जिस तरह नमाज आप अदा करते हैं फर्ज समझ करके, उसी तरह अपने बच्चों को डिसिप्लिन, उनकी तरबियत देना भी आपका फर्ज है। अगर आपने ये डिसिप्लिन और ये अखलाक और इस्लाह अगर बच्चों की नहीं की तो इसका खामियाजा, इसके वबाल बहुत बुरा होने वाला है आने चलते। और आयत में अल्लाह ताला ने कहा कि आप अपने घर वालों को अच्छाई का हुक्म कीजिए। 19वीं पारे की आयत है, अल्लाह ताला ने कीजिए अपने बच्चों को, उससे आप डरिए नहीं। आप बहुत से लोग ऐसा बहुत पाते हैं कि मेरे बेटा इंजीनियर है, मेरे बच्चा डॉक्टर है, मेरे बच्चा पायलट है, हम उसे बोलेंगे किसी तरह की तकलीफ हो जाएगी। और आपको ये नहीं पता कि वो दीन शरीयत को छोड़ रहा है, कितनी बड़ी बात है। आपकी नजर में वो चीज कितने महबूब है, यही नहीं पता। तो सबसे पहले जो जरूरी है और सबसे पहले जो हमें करना है वो है दीन के बारे में, अपने दीन के तालीम बच्चों को सबसे पहले, उसके बाद दुनिया की तो है ही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने बच्चों की तरबियत अगर सही अंदाजे से नहीं किया गया तो कल क़यामत के दिन ये कहेगा कि ए अल्लाह ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इनसे अलग कर दो वालिदा को बच्चे से, क्योंकि क़यामत के दिन कोई किसी का पुस्ताने हाल नहीं होगा। वजूह यौमइदिन मुस्फिरा वाहिदतुन मुस्तबशिरा व वजूह यौमइदिन अलैहा गबरा तरहक़ुहा क़तरा। उससे पहले वाली आयत, फइज़ा जाअत इस्साक़ा यौम यफ़िरु अल-मर्'ु मिन अख़ीहि व उम्मिही व अबीहि व साहिबतिही व बनीहि। कोई काम नहीं आने वाला है किसी का। बेटा बाप से भागेगा, माँ बेटी से भागेगी, हर कोई अपने अपने पुस्ताना हाल में होगा। उस सिचुएशन में लोग क्या कहेंगे? अगर आपके अमाल अच्छे होंगे, अगर आपने दुनिया के अंदर अच्छा काम किया होगा तो कल क़यामत के दिन ऐसे सिचुएशन आपके साथ नहीं पेश आएगा। ये पैगाम आप तमाम लोगों के लिए है कि आप अपने बच्चों को सही तरबियत करें। अगर बच्चा, आज के लोग ये भी कंप्लेन करते हैं कि मेरा बच्चा खाते खाते खाना खाता ही नहीं जब तक कि मैं मोबाइल न दूं। आप कितने अच्छे हैं, आप खुद बोल के कि बच्चा एक बुरी चीज को फॉलो कर रहा है और आप उस पर तालियां मार करके उसको आगे बढ़ाते हैं। नहीं खाएगा, एक दिन नहीं खाएगा, 2 दिन नहीं खाएगा, तीसरे दिन उसे खाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर उसकी तबीयत अगर इसी तरह का होगी तो आगे चलते हुए बच्चा क्या बनेगा आपके हाथ में? आपकी एक बात नहीं सुनेगा। जब बचपन में ये सिचुएशन है तो बड़ा होने के बाद आपका क्या सुनेगा? इसलिए अरबी का एक मकौला है, अशर्रु यब्दअु फी अस्लिल असग़र, कि असल बुराई जो शुरू होती है वो छोटी छोटी चीजों से शुरू होती है। तो बच्चे की तरबियत बचपन से अगर की जाए तो वो आगे चलकर वो आपके हाथ में खैर का जरिया बनेगा, वरना वो आपको जिंदगी में सुकून से जीने नहीं देगा। आज ये कंप्लेन आएगा, कल वो कंप्लेन आएगा, कल किसी को मान दिया, तो इसी तरह की शिकायतें आएगी। जिसको आपने अपनी निगाहों का बेहतरीन जरिया और बेहतरीन सरमाया माना था, वही आगे चल के आपके हाथ में उसके दराज और उसके बरकरार हो। इसलिए
یہ آخری سا میسج ہے، یہ آخری پیغام ہے میرا آپ تمام کے حق میں کہ اگر لائف میں کبھی ایسا بھی سچویشن آ جائے جہاں پہ آپ کو 2 روپے کم کھانے پڑ جائے، وہاں پہ آپ کھا لیجیے، لیکن اپنے اولاد کو ضرور بھی ضرور تعلیم، ایجوکیشن اور ڈسپلین ضرور بھی ضرور دیجیے، کیونکہ اس کے کھانے کا اور اس کے جینے کا یہی تو چیزیں ہیں جو آگے چل کر کے آپ کے لیے بھی نفع کا ذریعہ بنے گا اور خود کے لیے بھی بہترین کا ذریعہ بنے گا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی